Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Achha, in the previous class, good morning all of you at first. Till now students are joining. All of you know that in the previous class we discussed about the theory behind machine learning. There are different category of machine learning where we have to use which category of machine learning, etc. Anyone have any doubts, any query about my previous session? From today, we want to working with different types of machine learning program using different type of data set. And students, I want to share one information. All of you study from this website. In this website, because here in case of machine learning program, जब machine learning program आप लोग करेंगे, so in case of machine learning program, case study is very important. Case study. There are different types of data, different type of analysis available over here. Where you got that type of resources, there is a very big, good community. This is not website, that is a community. That is kaggle.com. All of you at first register yourself in the kaggle.com. Otherwise, it is not be possible access the data from kaggle.com community or blog. It is a blog. It is very important not only for the training. ये जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप लोगों को एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है. तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए भी आप लोग यहाँ से हेल्प, आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिलेगा. बट इन फ्यूचर व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, at that time also you got help from this community and blog, and you upload your work in this community also for future reference. यहाँ आप लोग भी, आप लोगों का जो भी काम कर रहे हैं तो वो यहाँ कम्युनिटी में अपलोड कर सकते हैं. तो जब साइन अप करना चाहिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट कैसे रजिस्टर करके लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद ऐसा कम्युनिटी ब्लॉग ओपन होगा. यहाँ एक डेटा पार्ट है, डेटा मेनू है ये, दिस वन. तो डेटा में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा. इट विल ओपन द पेज लाइक दिस, एंड इन दिस पेज there is a option is see all. If you click on the see all button, it will display the different type of data sets, because when we are working with data analysis, at that time we need a different type of data, and all the data are available in CSV format. All of you know that when we are working with pandas, at that time we read the data from CSV file, visualize the data, extract the data also. So here you got different types of data set. Huge number of data sets are available over here, like this: temperature change, mobile price, classification, stroke prediction data set. But some of the data sets are related with deep learning. But remember one thing, students, यहाँ हम लोग क्या सीख रहा हूँ, machine learning सीख रहा हूँ. Deep learning is something different, थोड़ा different है. तो ऐसा देखो पेजिंग है, तो यहाँ से आप लोगों का प्रोजेक्ट का आइडिया भी मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट का केस स्टडी भी कर सकते. जैसा एज फॉर एग्जांपल मे बी IPL, देखो IPL कंप्लीट डेटा सेट 2008 to 2020 डेटा सेट यहाँ मिलेगा. कोई भी लिंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो डाउनलोड ऑप्शन है, वो डेटा सेट CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं अपना मशीन में. और ये डेटा सेट को डिफरेंट वे में एनालिसिस किए हैं डिफरेंट पर्सन. ऐसा नहीं है कि एक डेटा सेट, देयर इज ओनली वन वे टू एनालिसिस अ सिंगल डेटा सेट, नो. एंड यू गॉट ऑल द कोड्स in notebooks main, so that is IPL complete data set.
If you click on the notebooks, तो ये नोटबुक में क्लिक करेंगे तो देखो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वे में एनालिसिस किए हैं, कितना सारा टाइप ऑफ एनालिसिस, और सब लोग वो अपलोड किए हैं। कोई भी एक लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको कोडिंग सैंपल भी मिलेगा, जैसा मे बी बेस्ट बैटमैन एंड बॉलर एनालिसिस। तो जब क्लिक करेंगे तो ऐसा देखो जो कोड आ रहा है स्टार्टिंग करने से पता चलेगा। देखो रीड CSV फंक्शन आप लोगों को आता है, कॉलम नेम एक्सेस किया है, तो डिफरेंट वे में एनालिसिस किए हैं, और वो कोडिंग एग्जांपल और उसका आउटपुट भी है यहाँ देखो, रीड CSV, कॉलम नेम्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ भी है, डिफरेंट वे में एनालिसिस किए। यहाँ कुछ ग्राफ नहीं है तो बैक में जाके और एक एनालिसिस देखिए, मे बी दिस वन IPL प्लॉटली, मतलब मैटप्लॉटली यूज करके ये ग्राफ भी जनरेट किए हैं। तो डिफरेंट वे, देखो ये पाई चार्ट, इजंट इट, कोडिंग भी है, उसका आउटपुट भी अवेलेबल है। देखो डिफरेंट वे में डेटा को एनालिसिस करके वो लोग अपलोड किए। तो ये केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो अभी हम लोग जो करेंगे कि प्रोग्राम सीखना है कि हाउ टू क्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल, हाउ टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट। इन द प्रीवियस क्लास we discuss about a different theory for machine learning program. Theory discussed here. But today we want to working with data and we write our code. Let's see. First of all, we want to working with simple linear regression. What I say? Okay. Simple linear regression. In the previous class, we discussed about that data set. ये डेटा सेट लेकर डिस्कस किया था। The data are stored in .csv file. These are the data: the year of experience and salary. What is our target? By we want to write a machine learning model program. Using that program, we predict salary for any experienced employee based on that data set. Because in the previous class, we discussed about it. When we create our model, at that time, when we create our model, just go ahead. Maybe this is our data set. Using that data set, this is our data set. When we create our model matlab, it is nothing but a program, Python program. Model. We train our model using that data.
हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा सेट है, डेटा सेट में मल्टीपल सैंपल ऑफ डेटा, तो ये डेटा देके हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग करने का पहले जो कल डिस्कस किए थे, क्या बोले थे कि मे बी these are the list of features. देखो here we want to create a machine learning model. Using that model we want to predict the salary. Salary is the output. Based on what feature? Based on year of experience. Here there is a single feature. There are some scenario when you got, later we discuss about it. Sometimes there are maybe multiple, हम लोग मल्टीपल फीचर देके भी प्रोग्राम करेंगे। And this is year of experience is the feature and salary is the output. Output depends on features. Features are independent. Feature किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आउटपुट फीचर का ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना सारा लिस्ट ऑफ फीचर वैल्यूज है वो सबको मैं भी एक्स देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना सारा सैलरी लिस्ट ऑफ सैलरी वैल्यू है वाई देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, जो एक्स एंड वाई, रिलेशनशिप बिटवीन फीचर एंड आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन mx प्लस सी इक्वल टू वाई। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, सिंपल लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, और जो डेटा सेट है इसमें देखो जितना सारा आउटपुट है, हर एक आउटपुट वैल्यू अवेलेबल है, एंड ऑल द आउटपुट वैल्यूज आर कंटिन्यूअस वैल्यू। तो जब ऐसा कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि हर एक फीचर के लिए एक स्पेसिफिक सैलरी वैल्यू, तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में दो कैटेगरी था, एक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन। जब ये सैलरी वैल्यू कंटिन्यूअस होगा तो कौन सा रूल्स यूज करेंगे, रिग्रेशन रूल यूज करेंगे। And this linear regression rule already implemented as a class, linear regression, ऐसा linear regression नाम का एक क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है, इन द मॉड्यूल sklearn। मॉड्यूल नाम, मॉड्यूल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल, दैट इज sklearn मॉड्यूल। sklearn मॉड्यूल में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप लोगों को पता है कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन पाइथन, but when we create a machine learning model, at first we have to read the data from that CSV file and store it in a Python in memory variable। ये जो डेटा है इसको तो रीड करके पाइथन में एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए। हाउ टू डू दैट, लेट्स सी द प्रोग्राम एग्जांपल। देखो, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import pandas as pd। तो प्रीवियसली हम लोग pandas लेके डिस्कस किए थे। तो देखो अभी फर्स्ट क्या करना चाहिए, read the data from that CSV file, from this CSV file, isn't it? What is the name of the CSV file? Check the file name, salary underscore data.csv। Read the data from that CSV file and store it in a Python in-memory variable। Python का एक variable में store करना चाहिए। This is a CSV file, so easily using this function we read the data from any CSV file and store it in a variable data set,
And remember one thing, here I save the Python program and salary data.csv file in the same directory. That's why we pass the file name directly as a parameter to the function read_csv. तो kaggle.com में आप लोग जब केस स्टडी करेगा देखेगा तो वो डॉट डॉट देके कुछ पाथ दिया है, तो वो डेटा सेट डाउनलोड करके अपना ओन डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे तो वो एडिट करके चेंज कर देना चाहिए। और रीड सीएसवी फंक्शन क्या करेगा, डेटा को रीड करके डेटा सेट बोल के वेरिएबल में सेव। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, चेक द डेटा सेट चेक करो, व्हाट इज दिस। देखो पांडास में हम लोग डिस्कस किए थे कि डेटा फ्रेम जनरेट करता है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज 0th कॉलम, सैलरी दैट इज 1th कॉलम। और ये जो इंडेक्स है एक्चुअली दिस इज रो इंडेक्स, this is row index by default generated by data frame. Check the data type over here, data frame. So at first we have to read the data from that CSV file. After that, if we want to create a machine learning model, we have to extract the feature like this. Extract the features and store it in a variable X, and extract all the output, store it in the variable Y. I think all of you know that if you got it, the data are available in data frame. Data set is a data frame. Then using slicing, we extract the data from the data frame easily. Let's see how to do that. देखो data set, what is this? That is data frame. Remember this, हम लोग जब pandas डिस्कस किए थे तब ये डिस्कस किए थे कि data set dot ilog, दो मेथड था, एक log एक ilog। तो कोई भी एक यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोग्राम में ilog यूज है कि दिस इज द ओनली वे। नो स्टूडेंट्स, हाँ। तो ilog मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स यूज करेंगे। तो देखो डेटा सेट डॉट ilog, देयर इज नो स्टार्ट रो इंडेक्स, देयर इज नो एंड रो इंडेक्स। तो मतलब क्या है कि जितना सारा रो है हर एक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉमा स्टार्ट कॉलम इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। स्टार्ट कॉलम इंडेक्स क्या है, 0, 0 कॉलम इंडेक्स से स्टार्ट होगा। एंड कॉलम इंडेक्स 1। तो ilog में हम लोग क्या देखे हैं, जो एंड कॉलम इंडेक्स होगा उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, not including the end column index value. That's why it will extract only 0th column values, and it will generate a series, but we need a numpy. That's why we write dot values, means convert it into numpy and store it in a variable X. After that, check. After that, if you execute the program, check the variable X. What is this? This is a numpy. देखो dot values किए थे तो इसलिए ये numpy. और कंपेयर द वैल्यूज, देखो जितना सारा डेटा सेट है उसमें 0th कॉलम का हर एक रोज को एक्सट्रैक्ट किया है। So these are the features and store it in a variable X. After that, देखो data set dot ilog, there is no start row index, there is no end row index, means it will extract all the rows again, but there is no colon, only one, means it will extract only 1th column index value. 1th column matlab this is 0th column, year of experience, and this is salary, 1th column. This is nothing, this is a row index. Okay, this is not the 0th column. 0th column, this one 1th column. If there is no colon, जब यहाँ colon नहीं है तो क्या करेगा, only 1th column का value extract करेगा, और डॉट वैल्यूज करके क्या किए हैं, उसको नाम पाई में कन्वर्ट करके y वेरिएबल में स्टोर किया। सो go to the variable explorer and check the y values. That's it. Oh, these are the list of y values.
and this is actual data set. Compare with this. देखो 1.139343 देखो 1.1 this is for this x, this is y, for this x, this is y. तो ऐसा करके क्या किया है, देखो x फीचर्स, तो यहाँ एक ही सिंगल फीचर है और आउटपुट सैलरी, store it in the variable y. Okay, so extract x and y. After that, what we have to do? After that, when we create a machine learning model, जब हम लोग machine learning model create करें, तो machine learning model को ट्रेनिंग भी देना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, बाद में टेस्ट भी करना चाहिए. तो देखो ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, डेटा को स्प्लिट करना चाहिए कि ट्रेनिंग डेटा अलग होगा, टेस्ट डेटा अलग होगा. Means like that. Means we have to split a list of x values and list of y values and generate maybe training data represented by xtrain. Oh, sorry. Xtrain. These y values represented by the variable ytrain, that is xtest, and that is ytest. How to split the data? That's why there is a built-in function train_test_split, which is defined inside this module. The train_test_split is defined inside. What is the name of the module? Under sklearn, there are different sub module. Model_selection. So we include this. From this module, import train_test_split. We call the function, we use the function train_test_split. What is the what is the first parameter? List of x values. And this function split the list of x values and generate sequentially xtrain and xtest. You can give any variable name over here. x को split करके जो ट्रेनिंग डेटा होगा xtrain में स्टोर किए हैं, जो टेस्ट डेटा होगा वो xtest वेरिएबल में स्टोर किए हैं. ये वेरिएबल नेम है, कुछ भी नेम दे सकते. तो मैं ऐसा नाम दे दिया कि वेरिएबल नेम देखने से हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस वेरिएबल, व्हाई वी यूज दिस. व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर? देखो y. Same way, it will split the list of salary value, y value, and store it in the split list of salary value and generate training data ytrain, test data ytest. Then next parameter, test size. In the previous class, I told you here minimum we use 70% of the data for training purpose and rest for testing purpose. Obviously, if you want to, what is the parameter name? Test size. What is the test data size? If it is 30, means we use 30% of the data for testing purpose, means rest 70% we use for training purpose. In the same way, if we write 0.25, means 25% data for training testing purpose and 75% data for training purpose. And random state equal to 42. Actually, it is nothing but a flag condition कि जब split करेंगे by selecting the random rows from x, मतलब कि देखो पहले 0th x 0th y. In the same way, maybe randomly 3th row x, 3th row salary. By selecting the row randomly, generate training data and test data. That's why we pass a random state. There are different random state available in Python. If you go through the website, sometimes you check that
कि random state equal to 0, no problem. Actually, Python upgrade the state function definition, always upgrade हो रहा है Python में. तो अभी theoretically बोलता है कि 42 status code randomly fetch करने के लिए सबसे अच्छा है, तो इसलिए मैं 42 यूज किया, एकदम अपग्रेडेड जो वर्जन में. और कोई कोई वेबसाइट में देखेगा कि 0 है, 0 देने से भी रन करेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, सो व्हेन वी स्प्लिट द डेटा, लेट्स सी, check X train and Y train at first. This is X, this is Y. Check X train, check X train, and that is our X train and Y train. देखो रैंडमली सिलेक्ट करके ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा जनरेट किया है ना. चेक इट. जैसे देखो पहले 4 इयर्स एक्सपीरियंस, तो यहाँ देखो 4 ईयर एक्सपीरियंस 412 नंबर रोज में है. यहाँ भी देखो 12 नंबर रोज में क्या सैलरी है, 56957. देखो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में एक्स का 08 में देखो 4, दैट इज, एंड सैलरी देखो 56957, मैच कर रहा है. नेक्स्ट देखो 1.1, मतलब रैंडमली ये एक्स वैल्यू तो 08 रो में और वाई वैल्यू में 39,000 समथिंग, देखो मैच करो 1.1 एकदम सेम. तो ऐसे देखो रैंडमली कोई भी एक्स वैल्यू, कोई भी रो का, सेम रो का एक्स वैल्यू, सेम रो का वाई वैल्यू फेच करके एक्स ट्रेन वाई ट्रेन जनरेट किए हैं. और इफ यू ऑब्जर्व द एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, देखो in the training data how many rows are there, देखो 21. in the actual data set देखो there are how many rows, देखो 31. तो one heading means there are 30 row. तो out of 30 row 75% of the 30 row calculate करके देखिए, तो 22 होगा. तो 75% डेटा क्या किस लिए यूज कर रहा हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए. In the same way 25% of the data we use for testing purpose. Check the X test and Y test. देखो out of 30 25% क्या होगा, 8 rows. देखो 0 to 7 8 rows, 0 to 7. तो यहाँ देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैल्यूज है टेस्टिंग डेटा में, एंड नॉट लाइक दैट कि सीक्वेंशियली वो एक्सट्रैक्ट करके स्प्लिट करके जनरेट किया, नो, randomly selecting the same row X, same row Y. So in this way we generate X train, Y train, X test and Y test. सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? और सब लोग ज्वाइन किया, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम पे आइएगा. सबको समझ में आ रहा है? जो लोग लेट में आया, नहीं तो रेज योर क्वेश्चन. हाँ, जब समझ में नहीं आएगा तो रेज योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम. अच्छा, नेक्स्ट. So we generate, thank you Ankit, we generate X train, Y train, X test and Y test. After that, so देखो we organize our data at first. Organize the data, training data, test data. Then based on the relationship we create our model, and the here based on the data and output, here we want to use a simple linear regression AI approach. Simple linear regression AI approach already defined as a class. So what we do, students, let's see. देखो linear regression defined as a class inside which module, sklearn.linear model. देखो सब मॉड्यूल नेम, हर एक सब कुछ कहाँ मिलेगा, sklearn. sklearn में डिफरेंट सब मॉड्यूल है.
जो लीनियर रिग्रेशन क्लास है वो कहाँ डिफाइंड है? लीनियर मॉडल बोल के सब मॉड्यूल में डिफाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मॉडल क्रिएट करना है मतलब क्या है, वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस किए हैं पहले। देखो क्या कर रहा हूँ, रिग्रेसर इज द ऑब्जेक्ट नेम। यू कैन गिव एनी ऑब्जेक्ट नेम, नथिंग बट ए क्लास टाइप वेरिएबल equal to linear regression. So here we create an object of the class linear regression and store it in a variable regressor. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, जब मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो मॉडल को ट्रेन करना चाहिए। हाउ टू ट्रेन आवर मॉडल? we feed the data, we feed what? Extrain, that is called feed the data into our model after creating the model. And we create a model using AI, linear regression AI approach, and we train the data. We train our model. At that time, we call the fit function. Fit function already predefined. We pass extrain and sequentially x feature values and output values into our model. So let's see, coding is very easy. देखो regressor.fit extrain and y train, यहाँ क्या किए हैं, ट्रेनिंग दे रहा हूँ मॉडल को कि फॉर दिस x दैट इज y, फॉर दिस x दैट इज y। तो मॉडल को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मॉडल क्या कर सकते हैं, जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, टेस्ट आवर मॉडल कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, वो एरर क्या एरर है वो चेक करना चाहिए। तो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था कि जितना सारा एक्स टेस्ट वैल्यू है, जितना सारा एक्स टेस्ट वैल्यू है, ये सब एक्स टेस्ट में एक्स टेस्ट में एक्स टेस्ट में जितना सारा एक्स वैल्यूज है, isn't it? देखो 3x वैल्यूज मे बी, तो ये सब x वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, we predict the y वैल्यू, y वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्रेडिक्ट करने के लिए क्या फंक्शन है, प्रीडिफाइंड है, प्रेडिक्ट फंक्शन। और प्रेडिक्ट फंक्शन में एज ए पैरामीटर क्या पास करेंगे, एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट। जब प्रेडिक्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो प्रेडिक्ट फंक्शन क्या करेगा, एक्चुअली आवर मॉडल प्रेडिक्ट द y वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा एक्स टेस्ट में जितना सारा x वैल्यूज है सबके लिए। देखो यहाँ में भी 3x वैल्यूज है, तो क्या प्रेडिक्ट करेगा, 3y वैल्यूज प्रेडिक्ट करेगा। एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय मे बी द वेरिएबल, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेडिक्टेड वैल्यूज को, y प्रेडिक्टेड, मे बी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आर लाइक दिस 80,000 for 5.9 years experience, maybe 94,000, maybe this one is 91,000. देखो let's see, देखो we call the predict function using this object reference। क्यों, क्योंकि जो fit function predict function सब वो linear regression class में defined है। तो देखो object name dot predict function, क्या पैरामीटर है, x test। तो if you observe the x test in our program, ये जो ऑब्जर्व करें तो कितना x वैल्यूज है, 1 2 3 4, देखो 8, 0 to 7 मीन्स 8 x वैल्यूज है। तो वो क्या करेगा, 8 y वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। तो वो सब प्रेडिक्टेड वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर किए है, y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट। तो चेक द y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट वेरिएबल फ्रॉम द वेरिएबल एक्सप्लोरर, वो वेरिएबल एक्सप्लोरर से चेक कर। तो ये देखो एक्चुअली प्रेडिक्टेड वैल्यू है हम लोगों का।
हर एक x के लिए एक predicted value. देखो 9.6 our machine predict 1,15,000. For 4.9 71,000 something. For 8.2 1,02,000 something. Okay. Now, if we want to calculate the error, what we have to do? देखो what are the actual y value for these x टेस्ट में जो x values है उसका actual y value कहाँ stored है? देखो y टेस्ट में check the scenario over here. ये y टेस्ट इसका साथ क्या करेंगे? तो देखो these are the y test values. तो अभी हम लोगों को एरर चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो ये एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू कंपेयर करेंगे. दिस वन देखो दिस इज x एक्चुअल वैल्यू 1,12,000 बाय बट आवर मशीन प्रेडिक्ट 1,15,000. कुछ एरर है तो ये एरर जितना कम होगा नियरेस्ट होगा उतना ही मॉडल एक्यूरेट होगा. लेकिन मैं जो यहाँ डेटा बनाया था वो मैन्युअली बनाया था तो इसलिए एरर में भी थोड़ा ज्यादा आएगा. नो प्रॉब्लम. इफ यू गॉट द रियल लाइफ डेटा एरर विल बी लेस. लेट्स सी in the previous class we discussed about it. We compare the actual y value and predicted y value. So there are three. Check the scenario, compare with this. यहाँ y test में 3 y values है इसका साथ कंपेयर करेंगे. तो जब कंपेयर करेंगे कि this actual y value, this actual y value, and we got error. Compare this and this, got some error. This and this, and we got some error. देखो sometimes we got positive error. देखो just compare कर रहा हूँ, मतलब इसमें भी subtract कर रहा हूँ, कितना difference है वो चेक करना है. वही तो error है. तो 81,000 something minus 80,000, maybe positive E1, 1,000 something. 93,000 something minus 94. तो देखो यहाँ कुछ नेगेटिव एरर आएगा. Yeah, 91,000 something minus 91,000. Obviously, again we got some positive error. So there are 3 test cases. So 3 errors. तो एक्चुअली एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करना है. तो एवरेज जब कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू का एवरेज तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा. तो इसलिए क्या करेंगे? इसके बाद नेगेटिव वैल्यू जो है उसको डिस्कार्ड करने के लिए जितना सारा एरर है सबका square of each error कैलकुलेट करेंगे. और हर एक एरर का स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने से क्या होगा? ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे? अभी जितना सारा स्क्वायर एरर है उसका मीन मीन्स एवरेज कैलकुलेट करेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर. ये सब इंटरव्यू में पूछेगा. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. मीन स्क्वायर एरर. How to calculate the mean square error? For calculating the mean square error, there is also a built-in function. Check that. Mean squared error is a function which is defined inside the matrix class, and matrix class defined in sklearn module. Just you have to remember this, in which module which class is available. And let's see students, matrix, matrix class name dot static method. I think all of you know that. Matrix dot mean squared error. From the function name you can guess that
That is the functionality of that function. Square error जो होगा उसका mean value. So it will calculate the mean of each square error. जितना सारा error है उसका square करके उसका mean value calculate करके return करेगा. क्या parameter है? देखो actual y value y test, predicted y value. That is mean square error return करेगा. उसके बाद क्या कर रहा हूँ? If we want to need root mean square error, or it is called RMSE. That is a technical term. RM. What is RMSE? Root mean square error. RMSE. Root mean square error. तो ये mean square error जो मिला उसका square root calculate करने से root mean square error मिलेगा. Square root function is defined inside the numpy, and we got the error. And when we execute the program, देखो I print this error equal to करके print किए हैं. तो यहाँ से हम लोग error check कर सकते हैं. तो देखो error जो है 6000 समथिंग. तो जब हम लोग जब डेटा सेट चेक कर रहा हूँ, देखो कभी कभी यहाँ सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, तो 1 लाख में 6000 इतना ज्यादा नहीं है. और एक बात है कि मैं जो डेटा सेट बनाया ये चेक करके देखो, ये मैन्युअली मतलब टाइपिंग करके बनाया. देखो 3.2 का एक सैलरी, 3.2 का डिफरेंट सैलरी. तो ये भी तो एरर है. एक्चुअली मैन्युअली बनाया तो इसलिए एरर इतना आ रहा है 6000 समथिंग. तो ठीक से डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली एरर कम होगा. उसके बाद क्या करेंगे कि मे बी हम लोगों का टारगेट है 2.3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला एक कैंडिडेट आया, उसका सैलरी प्रेडिक्ट करना चाहिए. हाउ टू डू दैट? देखो रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, और देखो यहाँ जो 2.3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय का सैलरी प्रेडिक्ट करना चाहिए. लेकिन प्रेडिक्ट फंक्शन में क्या पास करेंगे? numpy array पास करेंगे एवरी टाइम. तो इसलिए देखो क्या किए हैं, np डॉट एरे. और ये 2.3 को क्या किए हैं, देखो 2 डायमेंशनल डेटा चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कलम्स चाहिए, 1 रो 1 कलम, सिंगल डेटा मतलब 1 रो 1 कलम. तो इसलिए देखो डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पास किया. तो मतलब ये numpy array जनरेट करेगा, जो numpy array में 2.3 है. तो 2.3 के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सैलरी. आवर मॉडल प्रेडिक्ट दैट एंड आई प्रिंट दिस वैल्यू. देखो सैलरी कॉमा रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट. जब प्रेडिक्ट कर रहा हूँ देखो 2.3 के लिए वो प्रेडिक्ट कर रहा है 47,000 समथिंग. इन द सेम way maybe you need 3.3 years experience employee salary. So change the value, execute the program and check the output. So for 3.3 years experience, our model predict that 57,000 something. And observe the output. If we execute the same program multiple times, at that time it will reduce the error. So in this way, if we create a simple machine learning model, anytime we can predict the salary for any experienced employee. No need to working with a difficult mathematics rule. सबको समझ में आया? सवाई बुझते पेरेছিস? Anyone any doubts? Reply me students. Whether all of you got the topics till now or not. Next we want to discuss about the data visualization process, how to visualize the data. Okay. After creating machine learning model, we have to check that whether model is correct or not by visualizing the data. Now we discuss about it. So till now all of you got it. I got answer only from Ankit. What about other students? सबको अच्छा लग रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आया क्यों? Thank you Prince. Okay, thank you all. Now let's see students.
we want to visualize the data. I think all of you know that. Previously we discussed about matplotlib library. You can visualize any data. Here I want to visualize the training data. Let's see. At the beginning we include import matplotlib.pyplot as plt. उसके बाद क्या किया है देखो, plt.plot. देखो we plot xtrain ytrain. Xtrain ytrain means देखो list of x values, ytrain list of y values. And here we want to represent the year of experience using x-axis. Means these values represent using x-axis, these values represent using y-axis. So plt.plot xtrain comma ytrain, मतलब every देखो xtrain, just wait, and y. ये एक्चुअली ग्राफ है, देखो यूजिंग एक्स एक्सिस एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट किया, यूजिंग वाई एक्सिस सैलरी रिप्रेजेंट किया. देखो x इक्वल टू 5.3, y इक्वल टू 83,000 समथिंग. ऑब्वियसली कोई भी एक पॉइंट होगा जो क्या कर रहा हूँ, रेड स्टार देके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर एक डेटा पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ 0 to 21 मतलब 22 डेटा पॉइंट्स है. इफ यू काउंट द रेड स्टार देयर आर 22 डेटा पॉइंट्स. तो एक्चुअली हर एक x वैल्यू एंड हर एक y वैल्यू x10 और y10 में जो अवेलेबल है उसको x एक्सिस और y एक्सिस देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. स्टार रेड स्टार देके. ओके, रेड स्टार देके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये दिस वन फर्स्ट ग्राफ. x एक्सिस देखो टाइटल एम्प्लॉय डेटा, x लेवल एक्सपीरियंस, y लेवल सैलरी. ओके, और ये ब्लू लाइन क्या है, देखो यहाँ हम लोग जो कर रहा हूँ, जो मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, वो कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन देके ट्रेन कर रहा हूँ मॉडल को. देखो लीनियर इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट लीनियर इक्वेशन को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, मे बी स्लैंटिंग लाइन बट इट इज अ लाइन. जैसा आप लोगों को शायद पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, मे बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. ये किसका इक्वेशन है, ये तो सर्कल का इक्वेशन है. तो ऐसा देखो mx प्लस सी इक्वल टू वाई किसका इक्वेशन है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है. वही तो सोल्यूशन लाइन है. सोल्यूशन लाइन मतलब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हम लोगों का एक आइडिया आएगा कि हाँ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये वाई एक्सिस सैलरी ऐसा कुछ होगा. जैसा 2 पॉइंट समथिंग ऐसा होगा तो सैलरी ये 40 और 60,000 का मिडिल में कुछ होगा. तो ये सोल्यूशन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन से सोल्यूशन लाइन ड्रॉ नहीं होगा. एक्स ट्रेन वाई ट्रेन तो सोल्यूशन लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, वो जिगजैग लाइन होगा. तो सोल्यूशन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स ट्रेन में जितना सारा एक्स वैल्यूज है सबके लिए मॉडल देके जो वाई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू और एक्स वैल्यू देके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि मॉडल लीनियर इक्वेशन देके क्रिएट किया है. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट देखो प्रेडिक्ट कर रहा हूं, रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट वाई वैल्यू और व्हाट एक्सटेंड में जितना सारा एक्स वैल्यू है सबके लिए
y प्रेडिक्ट करके, y वैल्यू प्रेडिक्ट करके y pred अंडरस्कोर ट्रेन वेरिएबल में स्टोर किया है। और उसके बाद देखो plt डॉट प्लॉट x ट्रेन y pred अंडरस्कोर ट्रेन, मतलब ट्रेनिंग डेटा y वैल्यू y एक्सिस जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें देखो कोई सिंबल नहीं दिया, तो मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली लाइन ड्रॉ करेगा, और ये लाइन ही एक्चुअली मशीन प्रेडिक्टेड वैल्यू देके ड्रॉ कर रहा हूं, तो दैट इज द सॉल्यूशन लाइन। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है कि ये जो ग्राफ है, यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखो जितना सारा डेटा पॉइंट्स है, सब डेटा पॉइंट्स नियर टू द सॉल्यूशन लाइन, जितना नियर होगा। देखो ऐसा कुछ डेटा पॉइंट्स है कि यहाँ इतना दूर में, फार अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन लाइन, बहुत दूर में ऐसा कोई डेटा पॉइंट्स है, नहीं है। जब बहुत दूर में नहीं है, मतलब model almost correct. Some of the data points are lie in the solution line, and all the data points are nearer to the solution line. That's why we observe that ki, our model is okay. All of you got it, students? And another thing is that when intercept, मतलब if the equation is equal to mx plus c, m is the intercept, say m value, intercept. How to retrieve the intercept value? Execute the program. Oh, spelling is the capital case. Just wait. The intercept value equal to this, and in the same way you can calculate with all the things are predefined, intercept underscore. क्योंकि देखो जब इक्वेशन ऐसा होगा कि m, आपको m वैल्यू और c वैल्यू पता होगा तो क्या कर सकता है, इजीली y वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। हाउ टू एक्सेस दिस, देखो सबके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। C is the coefficient value, you can access the coefficient value also. Intercept, sorry, coefficient OF, check the value. So all the things are predefined. देखो coefficient value भी मिल जाएगा, intercept value भी मिल जाएगा. Using m and c value, obviously you can calculate y value for any cases, for any x value. So this is the way to write a machine learning program. We test our model, we predict the result, we check the error in predicted result also, we visualize the data, and by observing the data we guess that what is the scenario, whether our model is correct or not. After that, in case of, obviously here as we use linear regression, so we can calculate the intercept value and coefficient value also. And if we know the intercept and coefficient value manually by writing a equation, we can calculate the y value for any x value. सबको समझ में आया? नहीं तो क्वेश्चन करो. If anyone have any question, no problem. And remember one thing, students, in case of interview, later we discuss about other program also, other type of machine learning program. All the programs are almost same, but logic is different. That's why
latch on all the logic. लर्निंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, कोडिंग ऑलमोस्ट सेम, सबको पता चल जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड जिसको पता नहीं है वो इंटरव्यू में चांस निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए आप लोग हर एक का बैकग्राउंड सोचते रहिएगा। अच्छा, सबको अच्छा से समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा, नेक्स्ट we want to discuss about multiple linear regression. तो देखो अभी जो प्रोग्राम किए हैं तो इसमें कितना फीचर्स था, एक ही फीचर्स, लेकिन जब मल्टीपल फीचर्स होगा तब क्या यूज करेंगे, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन यूज करें। जैसा देखो मैं एक डेटा सेट बनाया, एम्प्लॉय डेटा, ऐसा नहीं है कि हर एक टाइम सेम टाइप डेटा सेट आपको मिलेगा, नो। डिपार्टमेंट नेम, वर्क आवर्स, number of global certification, year of experience, salary. Here also we want to predict the salary. Acha, regression this underscore is showing something. No. Shubham asked me कि in regressor.intercept underscore. Shubham, in Python, just wait. In Python, when you are working with a Python class, remember this thing. We use a function double underscore init double underscore. तो पाइथन में जितना कुछ प्री डिफाइंड है फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, सब वो डबल अंडरस्कोर देके स्टार्ट होगा, डबल अंडरस्कोर देके एंड होगा। फंक्शन नेम एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिट फंक्शन ही प्री डिफाइंड है, नो, बहुत सारा फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन। इन द सेम वे जो वेरिएबल्स, पैरामीटर और प्रॉपर्टी, जो इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट क्या है, लाइक ए वेरिएबल और प्रॉपर्टी, तो जितना सारा वेरिएबल्स और प्रॉपर्टी होगा वो सब कैसे प्रीडिफाइंड है, प्रॉपर्टी नेम देन सिंगल अंडरस्कोर। तो यहाँ से पता, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, एक्चुअली नेमिंग कन्वेंशन, बिल्ट इन नेमिंग कन्वेंशन। जो मैजिक फंक्शन है ऐसा करके सर्च कीजिएगा, क्योंकि डोंट थिंक दैट कि ओनली इनिट फंक्शन इज अवेलेबल, नो। अच्छा, लिस्ट ऑफ मैजिक थोड़ा स्टडी कीजिएगा, तो इसलिए मैं एवरीडे दिखाता हूँ कि नेट से भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा फंक्शन इन पाइथन, तो और भी नॉलेज ब्रॉड होगा। कोई भी वेबसाइट में ऐसा बहुत सारा लिस्ट ऑफ मैजिक फंक्शन देख रहा हूँ, कौन सा ये देखो, डबल अंडरस्कोर, मतलब यहाँ वो डिफाइन किए हैं, डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर मेथड, ये एब्सोल्यूट, ऐड, एंड, बूल, सेल, इनिट भी शायद होगा, देखो इनिट, तो ये सब प्री डिफाइंड है। और कहाँ से मिलेगा, देखो कमेंट इज dir int, तो यहाँ चेक करो dir underscore int, ये सब फंक्शंस मिलेगा। तो ये सब एक्चुअली
नेमिंग कन्वेंशन। समझ में आया? शुभम समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू। वेरी गुड फॉर इंटरेक्टिंग विथ मी। अच्छा, नेक्स्ट, इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मैं भी पूरा प्रोग्राम आज नहीं होगा, थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ टाइम है अभी भी। इफ कि डेटा सेट ऐसा है कि डिपार्टमेंट नेम, वर्क आवर्स, number of global certification, year of experience and salary. Here also maybe we want to predict the salary. तो देखो ये डेटा सेट से एक आइडिया आप लोगों को शायद आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सैलरी से एवरी टाइम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का ऊपर बेस करके कैलकुलेट करेंगे। नो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सैलरी सिस्टम इज डिफरेंट। तो क्या करेंगे, डिफरेंट वे में सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो सैलरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये सैलरी वैल्यू किसका ऊपर डिपेंड करेगा? Salary depends on department, work hours, number of global certification and year of experience, all. So how many features are there? देखो 1, 2, 3, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, any number of features हो सकता है, output is 1. तो जब features जब more than 1 होगा, number of features, number of input value जब more than 1 होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करें। क्यों लीनियर रिग्रेशन? देखो, चेक द आउटपुट, मे बी दिस इज आवर डेटा सेट, मे बी दिस इज आवर डेटा सेट। In this data set, these are the features. These are the features. Okay. And what is the output? This is the output, salary. So these are the features, and this is the output. So there are 1, 2, 3, 4 features. Maybe all the features are department may be represented by x1, work hours may be represented by x2, variable name, any variable name. Number of global certification represented by x3, year of experience represented by x4, and salary represented by list of salaries represented by y. So these are the list of x1 values. These are the list of x2 values. These are the features, x3 values and x4 values. And at first we check the output. All the output values are available. So this is under supervised machine learning category, first point. Supervised machine learning category. All the output values are available and continuous value. So which category? Obviously regression. Sorry, spelling mistake. Regression. Now, at first we have to decide this. Now think about the relationship. Relationship between
x1 comma x2 comma x3 comma x4 and y. How to represent this relationship? Think about it. Okay, we can represent this relationship using this equation ax1 bx2 plus cx3 plus dx4 plus one coefficient maybe e equal to y. Y value not independent value. Y depends on x1, x2, x3, x4. x1, x2, x3, x4 are independent variable, independent value. कि x1, x2, x3, x4 किसी का ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं. Y value depends on x1, x2, x3 and x4. And if we observe the data set, think that when x1 equal to development, x2 equal to 2300, x3 equal to 0 and x4 equal to 1.1, at that time y equal to this, a category of data. Another category of data, testing, work hours, number of certification, year of experience, then salary equal to 46,000 something. तो ऐसा देखो डिफरेंट सैंपल ऑफ ट्रेनिंग डेटा है, सैंपल डेटा और ट्रेनिंग डेटा. जो डेटा देके मॉडल को ट्रेन करेंगे. क्योंकि देखो जब हम लोग जब यहाँ सैलरी प्रेडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ भी एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ये मॉडल को क्या करना है, सेम प्रोसेस, ये डेटा देके ट्रेन करेंगे. Train our model, but in that case the number of features are more than one. That's why it is called multiple linear regression. And if we think about this equation, that's the same like simple linear regression, just the parameters are different, x1, x2, x3, x4. So we calculate, we predict the salary value using same class object. Don't think that there is another class defined for calculating the salary. In that case, like multiple regression class is available. No. Just we pass 4 parameters. 4 क्यों? जैसा 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, any हो सकता है, any number of parameters हो सकता है. Got it? Now, there is, if we observe the data set student, think about the data. In case of department, remember one thing, in case of machine learning program, it is not be possible to pass the numeric value into our, it is not be possible pass a string value, not numeric value, pass the string value into our model. Model में कभी string value हम लोग input नहीं दे सकते. लेकिन जो data set check कर रहा हूँ, देखो ये department तो वो string है. In every model, कि मे बी जब सिंपल लिनियर रिग्रेशन आप लोग यूज कर रहे हैं, मे बी ऐसा तो नहीं है कि एवरी टाइम हम लोग सैलरी प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि जॉब मिलना जरूरी है इसलिए. तो देखो सिंपल लिनियर रिग्रेशन में भी कि कोई भी फीचर डेटा जो है वो स्ट्रिंग है, तो क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए. ऑब्वियसली चेक the department name, x1 features, how to represent this using a numeric value. Obviously, if I हम जब आप लोगों को बोलेंगे कि ओके जस्ट
कि मशीन लर्निंग मॉडल जब क्रिएट करेंगे तो वहां कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू ऐसा इनपुट नहीं दे सकते। तो क्या करना है, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू देकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप लोगों को बोलेंगे स्टूडेंट बोलिए इसको कैसे न्यूमेरिक वैल्यू देकर रिप्रेजेंट करें। जस्ट थिंक अबाउट द लॉजिक। ऑब्वियसली आप लोग क्या करेगा, आप लोग देखेगा कि डिपार्टमेंट में क्या क्या नेम है। ओके डेवलपमेंट, तो आपको लगा कि ओके डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 0 वैल्यू देके। आप लोग बोल देगा इजीली कि टेस्टिंग को रिप्रेजेंट, जितना सारा टेस्टिंग है उसको 1 देकर रिप्रेजेंट करेंगे। जितना सारा और एक नया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो यूएक्स डिजाइन, उसको 2 देके रिप्रेजेंट करें। बाकी देखो और कुछ नया कुछ है, नहीं नया कुछ नहीं है। तो आप लोग देख के बोलेगा कि ओके सर डेवलपमेंट को 0 देकर रिप्रेजेंट कर देंगे, टेस्टिंग को 1 और यूएक्स डिजाइन को 2 देकर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ हम लोग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मे बी 30 रोज मे बी 40 रोज है, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में काम करें तो क्या करना चाहिए, मे बी 1 लाख रोज है। तो वहां से ऐसा करके 1 बाय 1 ऐसा चेक करके कैसे बोलेंगे कि 0 देके 1 देके और 2 देके रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज नॉट बी पॉसिबल। बट थिंक अबाउट द लॉजिक कि आप कैसे बोल रहे हैं कि सर 0 1 2 देके रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली जब मैं मार्क कर रहे थे कैसा लॉजिक बैकग्राउंड में काम कर रहा है कि पहले मैं देख रहा हूं कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज अवेलेबल इन दिस डेटा, कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज इन दिस कॉलम। देखो डिपार्टमेंट में क्या क्या यूनिक डिपार्टमेंट नेम है। एक है कि डेवलपमेंट, दूसरा है कि टेस्टिंग, और थर्ड वन क्या है, यूएक्स डिजाइन। यूएक्स डिजाइन। तो पहले क्या कर रहा हूं, एक्चुअली जब मार्क कर रहे थे हम लोगों का ब्रेन में दिमाग में ऐसे ही फंक्शनलिटी काम कर रहा है कि पहले यूनिक डिपार्टमेंट को फेच कर रहा हूं, यूनिक वैल्यूज यूनिक वैल्यूज को फेच कर रहा हूं, और यूनिक वैल्यूज फेच करने के बाद एक एक वैल्यू एक एक डिपार्टमेंट को एक एक वैल्यू देके कि डेवलपमेंट रिप्रेजेंट बाय 0, टेस्टिंग में भी रिप्रेजेंट बाय 1 एंड यूएक्स डिजाइन रिप्रेजेंट बाय 2। तो ऐसा काम कर रहा है दिमाग, है ना। तो देखो यहाँ जब मशीन लर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ भी ये जो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू देके रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल में स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट नहीं जाएगा, एरर दे देगा। तो स्ट्रिंग को जब न्यूमेरिक वैल्यू देके रिप्रेजेंट करेंगे मींस वी वांट टू encode a string value using a numeric value. That is called label encoding. What I say? Label. कुछ भी मैनुअली करने का जरूरी नहीं है। Machine learning provides us a technique that is called label encoding. And label encoding works just like that. But scenario is different. कि at first, in case of label encoding, at first it will select the unique department name. See here we execute, we want to, क्योंकि देखो जब आप लोग मशीन लर्निंग मॉडल लेके काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपार्टमेंट कॉलम में स्ट्रिंग आएगा, जैसा जेंडर मेल फीमेल ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसा टाइप का हर एक कॉलम को क्या करना चाहिए, लेबल एनकोडिंग करना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, यहाँ ये लेबल एनकोडिंग ये कॉलम में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेबल एनकोडिंग करेंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली
convert all the string values into numeric value, and we update these column values using this numeric value. Okay students, तो जब भी कि मे बी यहाँ हम लोगों का डेटा सेट में एक ही कॉलम स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो फीचर और y वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का बाद पहले ये जो 0th कॉलम वैल्यू है उसको लेवल एनकोडिंग करके न्यूमेरिक वैल्यू देकर रिप्रेजेंट करें. Then we train our model using this data set. All of you got it, student? अच्छा, की क्वेश्चन करें, सबको समझ में आया? तो आज और कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं होगा. तो अभी देखो कोई किसी का डाउट्स है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो. आई क्लियर ऑल द डाउट्स. तो आज तो फ्राइडे. अच्छा, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे. अच्छा, आप लोग एक बात बोलिए, तो वो जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे तो शायद छुट्टी रहेगा ना सरस्वती पूजा के लिए? एक बार रिप्लाई दीजिए तो स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर लेंगे. हाँ हाँ हाँ, छुट्टी होता है सरस्वती पूजा. छुट्टी नहीं है? होता है सर, छुट्टी होता है सरस्वती पूजा का हम लोगों के कॉलेज में. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं बात कर लूंगा, नो प्रॉब्लम. तो आज तो फ्राइडे है, तो आप लोग ये सब स्टडी कर लीजिए. थोड़ा कैगल वेबसाइट से भी स्टडी कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि टाइम मिलेगा सैटरडे संडे. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा कोडिंग करके प्रोग्राम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? ओके, सो और एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी रिक्वायरमेंट? सुबह पीपी की लिख ली पीपी लिख ली क्या नोड़े? शुभम क्यों लिखा पीपी? कुछ बोल रहा है शुभम? नहीं सर, वो दूसरा लिख रहा है. यस लिख ओके, थैंक यू. अच्छा, सबको अच्छे से समझ में आया आई थिंक. तो मैं बाद में सेंड कर रहा हूँ सब मटेरियल, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, हाँ. और जो kaggle.com थोड़ा देखिए, स्टडी करते रहिए. आहिस्ता आहिस्ता हम लोग तो और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो और इजी हो जाएगा, हाँ.